Good evening and welcome to the Coaching X HCon's very own public policy workshop in collaboration with Niti Tantra. As the host of the second largest policy challenge in India, don't forget to register for that one, folks. One problem we encounter is how just intimidating the idea of analyzing a scheme or drafting a policy is to students. Well, fear no more, because this workshop will leave you with the ability to analyze promises, policies, and schemes funded by the government so that you have the ability to make an informed decision about the benefits, practicality, and long term impact, and the art of writing a policy paper which will allow you to come up with creative solutions for long standing problems. We will learn all of this through fun, interactive games and a speaker session by Mr. Ritvik Mehta, the founder of Niti Tantra. We welcome you, sir. Without further ado, let the games begin. Pranjal would now be telling you about the round one. For the first round, participants must identify the main governance problem or policy failure that led to the Gaurikund landslide in Uttarakhand. Focus on the most prominent issue of all and jot it down in the form accessible via the QR code on your screen. Thank you so much, everyone, for the responses. We'll be discussing few of the responses. Bhumika Chawla has given the response, the main governance failure, but this is the lack of infrastructure and following up on the landslide or disaster prone areas in order to prevent such disasters from happening in future. Then the second response, Anika Kohli, the tragic landslide in Gaurikund, which resulted in the loss of 3 lives, underscores the multifaceted points of failure contributing to disasters, such as the geological factors, heavy rainfall, deforestation, poor infrastructure, etc. The third response is the poor construction of roads, especially in that area, and how we should build contracts on the road construction. Moving to the next response of Aryan Sharma, the government's slow response to aid in these disasters and not learning from the previous disasters that have occurred has been the main contributor to this disaster. Thank you, everyone. Great job. Time for round two. Scanning the QR code on your screen will direct you to a Google form displaying the strengths and weaknesses of the Disaster Management Act 2005. Take inspiration from disaster management policies across the world and suggest measures other than improving the weaknesses to improve the act. Thank you so much for the responses. We'll be reading out the best responses. The first one is Aparna's, where she talks about central government needs to hire an entire team that does a check of these disaster prone areas and constructs accordingly. Development needs to happen, but the Act needs to keep in check against the widespread construction of roads, highways, deforestation, and unhoming tribals and locals. The second response is of Rishika, who talks about there are some areas where the policy could be improved. One area is the area of implementation. The policy is ambitious and requires significant resources and expertise to implement. It is important to ensure that necessary resources are allocated and that the capacity of the government agencies and communities to implement the policy is strengthened. Another area where the policy could be improved is in the area of risk assessment. The policy calls for the development of comprehensive risk assessments at the national, state, and local levels. However, these assessments have not been completed. It is important to actually accelerate the development of these assessments so that they can be used to inform the disaster management planning and decision making. Romil would like to add something. I also feel that these disaster management agencies should enter into public-private partnership models and also collaborate with foreign agencies for transfer of technology. And they can also develop indigenous, cheap, low-cost technology, which costs less but is high-tech in nature, so that these disasters can be handled more effectively. And also, if we give incentives to the private sector, then they can also contribute for this disaster mitigation response fund.
Policy making is a task easier said than done. To understand the complex process of analyzing a policy that has been made, of completely coming up with a new one from scratch, of taking into account every shareholder, we have our guest speaker, Mr. Ritvik Mehta, the founder of Niti Tantra, here to enlighten us with the speaker session on the same. We welcome you, sir. Hi, good evening, everyone. My name is Ritvik Mehta. I am an electrical engineer turned into a political strategist and a public policy consultant. And I'm 23 years of age. I'm from Amritsar, Punjab. And it's been more than 2.5 years that I have been in the field of political strategy and public policy consultancy. So, in today's session, we'll learn about how these politicians, or whenever I should say the ministries, how they formulate a public policy. When we say that ye wala bill aaya, I'll be using Hindi and English side by side so that everyone can understand better. So whenever a ministry comes out with a policy कि ये वाला एक्ट लेकर आ रहे हैं, ये वाला बिल लेकर आ रहे हैं, ये वाला स्कीम लेकर आ रहे हैं, so how do they do the calculations? So first of all, identify a problem. सबसे पहले आपको प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए. This is the biggest thing. जब भी कोई पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट या कोई पब्लिक पॉलिसी का स्टूडेंट मेरे पास आता है और बोलता है कि सर मेरे को कोई यूनिक आइडियाज नहीं पता चल रहा है कि इसको क्या रिकमेंडेशन देना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट इन अ मिनिस्ट्री ऑलमोस्ट ऑल द आईएएस ऑफिसर्स ओनली दे आर बिहाइंड एंड ड्राफ्टिंग एंड गिविंग द सॉल्यूशंस टू द मिनिस्टर्स कि सर इसका ये एक सोल्यूशन होना चाहिए, वो होना चाहिए. सो वो लोग कैसे एक आइडिया के बारे में सोचते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से जानकारी रख लो कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है. सेकंड थिंग इज थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन. ऑफ कोर्स सर ये कौन सी बड़ी बात है, आपने तो बहुत बड़ी चीज तो नहीं बताई. सो फर्स्ट थिंग इज स्टडी अबाउट वेरियस मॉडल्स दैट आर इंप्लीमेंटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. हम क्या करते हैं, या इंडियंस की एक बहुत बड़ी बीमारी है क्या, कि दूसरे का मॉडल अच्छा लगा उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं. क्या पॉइंट नंबर 1 इन पब्लिक पॉलिसी कि हम बाकी मॉडल्स के बारे में रीड जरूर करेंगे, मगर जरूरी नहीं है कि उस कंट्री का मॉडल एज इट इज इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट हो जाए. और मैं उसके अलग अलग एग्जांपल्स दूंगा. सो लेट्स फर्स्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ वेरियस, इसका जो मैंने आपको बताया, दैट स्टडी अबाउट वेरियस मॉडल्स इंप्लीमेंटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एक पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं. ठीक है, ही इज इन द रेस ऑफ बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर. उन्होंने 2019 चुनाव के अंदर, जब 2019 लोकसभा के इलेक्शंस थे, तो उन्होंने एक रैली के अंदर जाकर बोला कि ये जो जीएसटी है, ये जीएसटी नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है. जब हमारी सरकार आएगी तो हम सिंगल स्लैब टैक्स कर देंगे सिंगापुर मॉडल की तरह. अब आप मुझे खुद बताओ, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, नहीं करते हो. ठीक है, क्या मैं एक पार्ले जी के बिस्किट के ऊपर और एक बीएमडब्ल्यू के ऊपर सेम टैक्स लगा सकता हूं? दैट मींस हम सिंगापुर का मॉडल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. सो दैट मींस हम डायरेक्टली वो मॉडल यहां पे इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते थे. बट जस्ट इसको नोट डाउन कर लो कि किसी भी कंट्री का मॉडल हम डायरेक्टली अपने देश के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे देश का कुछ, मतलब हर एक कंट्री का अपना अपना एक सिनेरियो रहता है. वहां पे लोग कैसे हैं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है. ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है, एक तो पॉइंट नंबर 1, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, और अगर आपको लगता है कि मैं किसी और कंट्री से मॉडल इंप्लीमेंट कर सकता हूं चाहे कुछ ना कुछ चेंजेस करके, दैट इज द पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम आपके पास आई है मुझे उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा? डू आई हैव टू मेक अ लॉ फॉर द प्रॉब्लम दैट आई हैव इन हैंड? सो फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वर मेजॉरिटी ऑफ लाइक द इंडिया वाज स्ट्रगलिंग फ्रॉम डाउरी केसेस. ठीक है, 2004 2005 के अंदर डाउरी के बहुत सारे समस्या आ रही थी कि भाई साहब लड़की ब्याह कर आई है, उसके बाद लड़के वालों ने उसके लिए दहेज के लिए बहुत ज्यादा किया, प्रेशराइज किया और उसको जला दिया या कुछ भी कर दिया. बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे. तो फिर उसके लिए कानून बनाना पड़ा. कौन सा? प्रिवेंशन ऑफ डाउरी एक्ट बनाना पड़ा. 2005 के अंदर आया, फिर वो कानून आया. फिर उसके बाद चलते चलते 2000 अभी 2018-19 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्ट आया कि सर इसका बहुत मिसयूज हो रहा है. क्यों? बिकॉज द प्रोविजंस इन द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वर लाइक कि अगर किसी लड़की ने केस कर दिया तो लड़के और लड़के के घर वालों को एक साथ ही बिना जेल में बिना कुछ करे डायरेक्ट हो जाएगा. कोई ये नहीं देखा जाएगा कि पहले केस उनका पढ़ेंगे, नहीं, डायरेक्ट जेल के अंदर हो जाएगा. उसका मिसयूज होना स्टार्ट हो गया. सो नाउ देयर नीड्स टू बी अ चेंज इन दैट, देयर नीड्स टू बी एन अमेंडमेंट इन दैट. तीसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पब्लिक पॉलिसी की प्रॉब्लम ऐसी आई है जिसके अंदर ना तो मुझे कानून बनाना चाहिए, ना तो मुझे किसी कंट्री से सीखने की जरूरत है, मुझे उसको, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर मैं पैसा दे दूं तो वो काम चल जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में सुना होगा. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ओके, अंडर विच दे आर गिविंग 6,000 रुपीज टू द फार्मर्स.
ठीक है. Or you might have heard political parties saying that we will give you 300 units of free electricity. Arvind Kejriwal ji, whenever there is an election, any state election, he says that we will give 2,000 rupees to the women. Okay. So if you think that we need to give some sort of financial help directly into the bank accounts of a person in order to solve that problem, then that can be a policy solution. फिर उसके बाद when you will be working with a ministry, जब आप किसी आगे जाकर किसी मंत्री के साथ काम करोगे ना, तो जब आप उनको अपना पॉलिसी ड्राफ्ट दिखाओगे कि सर मैंने ना ऐसा ऐसा करके पॉलिसी बनाया है, तो वो आपसे एक चीज पूछेगा. ठीक है, वो पूछेगा बेनिफिशियरीज कितने हैं. बेनिफिशियरीज मतलब इस स्कीम, अगर मैं इस स्कीम को लॉन्च करता हूं तो इस स्कीम का फायदा कितने लोगों को होगा. हिंदी में उसका मतलब होता है लाभार्थी. जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना होगा, ये सब चीजें. ठीक है, तो बेनिफिशियरीज कितने होंगे तो आपको पता रहना, आपको तो पता ही होगा क्योंकि स्कीम आपने बनाई है, तो आपको तो पता ही रहेगा कि वो स्कीम कितने लोगों के लिए बनी है. क्या उसके लिए सभी लोग एलिजिबल हैं, क्या उसके लिए सिर्फ बूढ़े लोग एलिजिबल हैं, या सिर्फ औरतें एलिजिबल हैं, ये तो आपको पता रहेगा. तो आप तो कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज आपके पास डेटा है. फिर उसके बाद आपको मंत्री को यह भी बताना पड़ेगा कि अगर इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना है तो कितना पैसा लगेगा, बिकॉज अपनी जेब से थोड़ी ना पैसा जाएगा, बट पैसा बजट से जाएगा, और बजट से पास करवाने के लिए मिनिस्ट्री का बजट अप्रूवल जरूरी है. तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि कितना पैसा उसके अंदर लगेगा. व्हेन यू आर वर्किंग विद अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप आगे जाकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट काम करते हो और आप जाकर उस पॉलिटिकल पार्टी को बोलते हो कि सर इन दिस मैनिफेस्टो वी शुड डू दिस. ओके, सो आपको एक और चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी विच इज नोन एज वोटर आउटरीच. वोटर आउटरीच का मतलब ये होता है कि अगर हम ये मैनिफेस्टो के अंदर डालेंगे तो कितने लोगों का वोट संभावित मिल सकता है. हाउ मच वोट्स आई कैन गेट इफ आई अनाउंस दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल प्रॉमिस. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड टाइम पीरियड. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपने मैनिफेस्टो के अंदर बोल रहे हो, या फिर कोई भी XYZ सरकार ये बोल रही है कि हम 4 लेन सड़कों को 6 लेन सड़कें कर देंगे. ठीक है, देयर आर 4 लेन्स हाईवे, तो अगर हम आएंगे सरकार के अंदर, इफ वी विन द इलेक्शंस वी विल डू 6 लेनिंग और 8 लेनिंग ऑफ दैट नेशनल हाईवे. सो कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा उसको इंप्लीमेंट होने में, आपको ये भी कई बार मिनिस्टर्स को बताएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज एक चीज नोट डाउन कर लीजिए. अगर आप किसी स्टेट स्पेसिफिक चीज से काम कर रहे हैं, किसी स्टेट स्पेसिफिक से काम कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, तो आपको डेटा कहां से लेना है. इंटरनेट पर जाओ, गूगल के ऊपर जाओ और वहां पे टाइप करो अपने स्टेट का नाम और आगे लिख देना एब्स्ट्रैक्ट. क्या लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, जैसे आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ क्या कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है. ठीक है, ऐसे ही हर एक स्टेट जो होती है वो अपना एक इकोनॉमिक एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना बजट के बाद देती है, उसके अंदर सबसे बेस्ट डेटा दिया होता है, मतलब सबसे ऑथेंटिक डेटा दिया होता है. अब आते हैं फाइनल चीज के ऊपर विच इज अबाउट हाउ अ पॉलिसी पेपर शुड बी रिटन. बिकॉज आप आगे जाकर किसी मंत्री के साथ काम करोगे, किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम करोगे, और वहां पे जब तक आप अच्छे से किसी चीज को ड्राफ्ट नहीं कर लेते तब तक आपका डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा मिनिस्ट्री के अंदर. तो कैसे लिखते हैं एक पॉलिसी पेपर. सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी. एग्जीक्यूटिव समरी जिसको हम अपनी पॉलिसी पेपर या उसकी दुनिया के अंदर बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट. सबसे पहले तो भाई साहब एब्स्ट्रैक्ट हमेशा एंड में लिखा करो. पता नहीं ये लोग जितने भी मतलब जो लोग इस पब्लिक पॉलिसी की दुनिया के अंदर घुसते हैं पहले सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं. अरे एब्स्ट्रैक्ट आपके पॉलिसी पेपर का वो है जो आपने पूरा सब कुछ फाइंडिंग वाइंडिंग करने के बाद आपको पता चला और आपको उसको 150-200 वर्ड्स के अंदर समराइज करना है. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट सबसे एंड में लिखो. स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन के साथ. इंट्रोडक्शन 2 पैराग्राफ के अंदर आपका खत्म हो जाना चाहिए, जिसके अंदर आप अपने टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड देते हो. ठीक है, फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी का क्या मतलब, आपने अपने पॉलिसी पेपर को लिखते टाइम कहीं ना कहीं से डेटा लिया होगा, कुछ ना कुछ आपने सर्वे किया होगा, या तो आपने ग्राउंड सर्वे किया होगा या आपने गूगल फॉर्म का सर्वे करवाया, कुछ ना कुछ तो किया होगा. वो मेथोडोलॉजी के अंदर आता है. देन कम्स लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू क्या भला है. लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम क्या करते हैं, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप अपना पॉलिसी पेपर लिख रहे हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपका जो आइडिया है वो एकदम यूनिक होगा. जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया होगा. तो आपको क्या करना है, आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ 5-6 लोग जिन्होंने इसके ऊपर सबसे बढ़िया पेपर लिखा है, टॉप के 5-6 पॉलिसी रिसर्चर्स जिन्होंने इसके ऊपर सबसे बढ़िया पेपर लिखा है, उसका पेपर उठाओ और उसको एनालाइज करो. फिर उसके ऊपर आता है पॉलिसी कंटेक्स्ट, पॉलिसी फाइंडिंग, कि भैया आपका अब क्या पॉलिसी फाइंडिंग रहा, आपने इतनी रिसर्च करी, आपने क्या पाया, व्हाट आर द फाइंडिंग्स. देन कम्स द केस स्टडीज. अब केस स्टडीज वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बताया था,
ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, ब्रिटेन में क्या चल रहा है, स्विट्जरलैंड में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, जापान के अंदर क्या चल रहा है, वो चीजें आप अपने पेपर के अंदर डिस्कस करो। फिर उसके बाद व्हाट लेसन्स योर कंट्री कैन लर्न फ्रॉम अदर नेशंस। फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा विस्तार के साथ जाना चाहूंगा एंड देन आई विल फिनिश माय दिस सेशन। मैं आजकल मतलब आई रीड न्यूज़पेपर डेली, ठीक है। मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत है पॉलिसी एनालिस्ट से, आजकल के जो पॉलिसी एनालिस्ट आ रहे हैं वो एक छोटा सा आइडिया देते हैं अपने जो न्यूज़पेपर के अंदर ऑपेड्स होते हैं या रिसर्च पेपर्स होते हैं, गवर्नमेंट शुड डू दिस, गवर्नमेंट शुड डू दैट। गवर्नमेंट को ना सजेशन ऐसे दे रहे होते हैं जैसे पता नहीं खुद ही मालिक बनकर बैठे। अरे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर तो बताओ मेरे जनाब, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो बिफोर यू एनालाइज एनी पॉलिसी, ठीक है, यूज दिस पर्टिकुलर पेस्टल टेक्निक। पेस्टल माने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। आपके पास कोई भी मुद्दा आया, कोई भी आपके पास मुद्दा आया, वन नेशन वन इलेक्शन आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, कोई भी आपको पॉलिसी बनानी है, उसको अगर आपको एनालाइज करना है तो ये पेस्टल टेक्निक का इस्तेमाल करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है, you can reach out to me. You can take my contact number from the organizers. You can message me on Instagram. You can message me on Twitter. Find me on LinkedIn as well. ठीक है. And I hope so. आप सबको मजा आया होगा. Please, you can share your questions, whatever you have.